Hello student, I am your physics mentor Nitesh Kumar and today I am going to discuss new topic prism. Okay, in last lecture हम लोग ने बात किया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्वेश्चन बेस्ड ऑन TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिज्म के बारे में और यहाँ हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ओके, so student, first, what is prism? It's actually a homogeneous transparent piece of medium which is bonded by at least two inclined surfaces. Okay, here it's written it's a homogeneous solid transparent and refracting medium bonded by two plane surfaces in inclined at an angle is called prism. In real life, if you will find the prism is looking like this. इस तरह से प्रिज्म दिखता है ऐसा। ओके, तुम सब ने लैब में देखा होगा प्रिज्म, बट हाँ, इस चैप्टर में हम लोग इस प्रिज्म को इस तरह से देखने वाले। यहाँ पे ये है ए बी सी। अभी हमने ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का ले रखा है, तो ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। इसी को हम लोग एपेक्स एंगल भी बोलते हैं, apex angle. Okay, or this is also called the refracting angle of prism. Okay, these two surfaces AB and AC are the refracting surface. Okay, now we are going to discuss the refraction through prism. Refraction through प्रिज्म। तो हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। जो रिफ्रैक्टिंग टू सरफेसेस है उससे हम लोग देखेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन। सो लुक एट दिस स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग अ प्रिज्म हेयर। ओके, द नेम ऑफ द साइड्स ऑफ द प्रिज्म इज, एक मिनट, जस्ट वन सेकेंड, दिस वन इज द okay, so now here this one is the A, B and C. Okay, AB is the first refracting surface I am assuming and AC is the second refracting surface. तो अगर हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, इधर भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया and we are assuming a ray is incident on the first surface. अब ये इंसिडेंस हुआ है with some angle I. So look at this here, if we are assuming prism is मेड विद द ग्लास, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू पी लेते हैं, सराउंडिंग में हमने ले लिया है म्यू एस। ओके, सो अगर हम लोग ऐसा कंडीशन ले रहे हैं दस म्यू पी इज ग्रेटर देन म्यू एस, म्यू पी जो है म्यू एस से ज़्यादा बड़ा है, तो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी प्रिज्म का अगर ज़्यादा है surrounding से, then what will happen, the ray will tilt towards the normal. Actually this ray have to go in this direction, but what will happen, this will tilt towards the normal. Now this refracted ray again interact with this media layer, इस साइड ग्लास मान लिया, इधर एयर मान लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, then what will happen, actually this ray have to go in this direction, but what will happen, it will go away from the normal. So look at this, here ray is moving along this path. Okay, so this one is the incident ray, first it interacting on the first refracting surface, then after here this one is the first refraction angle, then again it's interacting at the second surface, this one is the incident angle at the second surface, and here this ray is emerging out from the prism with E angles, इसको हम लोग बोलते हैं emergence angle. Okay, and this ray is called emergent ray. After two consecutive refraction, ये जो ray है इधर से emerged out हुआ and this one is the incident ray. This one is the incident ray. Okay, look at this student, here if we want to find the angle of deviation, अब ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या, देखो एक्चुअल में ये रे इस लाइन के अलॉन्ग आ रहा था और अगर ये प्रिज्म प्रेजेंट नहीं होता तो ये रे जो है इसी लाइन के अलॉन्ग
चले जाता. But just because this prism is present here, now this ray is going in this direction. अगर इसको extend करें तो हम लोग निकाल सकते हैं कि ये जो है this angle del, this is the angle of deviation. यही है angle of deviation. Okay, we are denoting it with a del. चलो अब angle of deviation find करते हैं. एंगल ऑफ डेविएशन. तो हमने प्रिज्म लिया था इस तरह से, यूँ. इस प्रिज्म में यहाँ एक नॉर्मल डाला था, इधर एक नॉर्मल डाला था. रे इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट सरफेस विद सम एंगल आई. फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ था. दिस रिफ्रैक्टिंग एंगल इज़ R1, दिस एंगल इज़ R2. और यहाँ से जो इमर्ज्ड आउट हुआ था ये एंगल था E. Okay, this is the ABC. तो this one is the angle of prism और यहाँ A is the here angle of prism. Okay, so now look at this. If we want to calculate the angle of deviation, actually if you will extend this ray and look at this, the ray is now going in this direction. So here this is the angle of deviation. This del is the angle of deviation. So we have to find the value of del in the terms of I, E, A, R1, R2. Okay, here we are assuming the refractive index of prism is mu p and the surrounding is mu s. Look at this. Here in this, if you will extend this one and assume this angle is x. So look at this quadrilateral. In this quadrilateral, if I am writing the name of this point is P, Q and here this one is the R. So I am talking about the quadrilateral APRQ. इस APRQ quadrilateral में sum of all the angle is equal to 360. So what we can write? A plus 90 plus X plus 90 equal to 360. So what we can write? A plus X is equal to 180. Okay, now look at this, student. If we are talking about this triangle PRQ, so I am talking about this PRQ, a small triangle. In this triangle, what we can write? The sum of all the angle is equal to 180. So R1 plus R2 plus X is equal to 180 degree. Okay, this is in degree. Now equate the from first and second. What we can write? From first and second, A plus X is equal to R1 plus R2 plus X. X is cancelled out. What we can say? A equal to R1 plus R2. This is our third equation. Now student, look at this. If I am writing here, this angle is I and this angle is R1, then this left part, this angle is what? This is the I minus R1. Okay, similarly look at this. Here this angle is E and this angle is R2, then this small angle, this one is what? This one is E minus of R2. Now look at this. This is a small triangle. In this small triangle, I am talking about this small triangle. In this small triangle, this one is the external angle, and we know that this external angle is sum of these two angles. So what we can write here? The del is equal to I minus of R1 plus E minus of R2. Okay, if you will decorate it, what we can write? I plus E minus of R1 minus of R2, take minus common, so this will be R1 plus R2. So we can write del equal to I plus E, and R1 plus R2 is what? E. So we can write like this. So this one is the our angle of deviation formula for the prism. Okay, now student, look at this. So you will get the question there, like sometime the I is given or E is given. If it is not given, then you will get the refractive index. After applying Snell's law 2 times,
एक P पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, Q पे लगाना पड़ेगा और आप आराम से E निकाल पाओगे। देन आफ्टर यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डेल। ठीक है, तो इस पे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। अब और अगर हम लोग देखते हैं, ऐसा करते हैं कि एक ये जो डेविएशन एंगल है तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं प्रैक्टिकली। आप लोग देखोगे, आप लोग को प्रैक्टिकल कराया जाता है लैब में, तो वहाँ पे क्या करते हो आप, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आई लेते हो। यहाँ पे आपको लैब में बोला जाता है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई लेने और उसके करस्पॉन्डिंग डेल निकालने के लिए। ओके, so for the different values of I, you are getting the different values of E, and by putting that I and E you are able to calculate the del। तो अगर मान लो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। दिस ग्राफ इज बिटवीन एंगल डेल एंड एंगल आई, इंसिडेंस एंगल और डेल के बीच का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देन व्हाट यू विल फाइंड, अगर आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आई लेते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको डेल मिल रहा है, दोनों का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, देन यू विल फाइंड द ग्राफ इज़ लाइक दिस। ओके, अब इस पे हमने लिया है डेविएशन एंगल और इधर हम लोग ले रहे हैं इंसिडेंट और इमर्जेंट, सॉरी तो अगर हम लोग इस पे ले रहे हैं इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो डेल मैक्स आ रहा होगा, द डेल मैक्स, जहाँ पे आपका आई जो है वो मिनिमम होगा। अच्छा, आई मिनिमम होगा तो ई मैक्सिमम हो जाता है 90 डिग्री, मैक्सिमम इमर्जेंट एंड देख लो। बट यू विल फाइंड द सेम वैल्यू ऑफ डेल, द सेम डेल मैक्स इज ऑल्सो कमिंग एट अ डिफरेंट पॉइंट, और वो होता है आपका यहाँ पे आपको I इक्वल टू 90 और E जो है आपका वो मिनिमम आएगा। अच्छा, कोई और जनरल अगर आपको डेल लेना है मान लो, देन व्हाट यू आर फाइंडिंग एट टू वैल्यूज़, एट टू डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ I यू आर गेटिंग द सेम डेल। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर मान लो आपने I इक्वल टू एक्स लिखा और E इक्वल टू वाई आ रहा है, तो आपको पता चलेगा इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे I इक्वल टू वाई है और E इक्वल टू एक्स है। ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरह इंटरचेंज होगा। बट जब आप यहाँ पर जब देखते हो तो आपको पता चलता है कि डेल मिनिमम एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आ रहा है। अच्छा, स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आ रहा है, इस पॉइंट पे I जो है E के बराबर मिलेगा। ओके, तो इससे एक बात प्रूफ होता है, अगर हम लोग को डेल मिनिमम चाहिए, मिनिमम डेविएशन मांगता है, तो उस पॉइंट पर जो इंसिडेंट एंगल होगा वो और इमर्जेंट एंगल दोनों सेम होगा। ये प्रैक्टिकल ग्राफ है, अपने लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आई लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ हम लोग को मिलता है। ठीक है, और इस ग्राफ से हम लोग बोल सकते हैं कि डेल मिनिमम जो मिलता है या मिनिमम डेविएशन, मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये जो ग्राफ था हमारा, इस ग्राफ में हमने देखा कि हमें जो मिनिमम डेविएशन मिल रहा था, ये डेल मिनिमम जहाँ मिल रहा था वहाँ पे I और E इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल सेम था। इस पे हमने एंगल लिया था और इस वाले पे हमने डेविएशन लिया था। तो अगर हमारे पास ये मिलता है कि I इज़ इक्वल टू E, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज़ द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। इफ़ I इज़ इक्वल टू E होता है इस प्रिज्म में, आप देखो ये जो प्रिज्म है जहाँ पे रे इस तरह से इंसिडेंट कर रहा है लाइक दिस, और ये है I और ये है आपका इमर्जेंट एंगल E। और अगर I E दोनों बराबर होगा तो इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल ही था R1 और ये इंसिडेंट एंगल था, रे आकर इंसिडेंट हो रहा था विद द R2 और फिर इमर्ज आउट हो रहा था विद द E। अगर ये दोनों बराबर है, सो व्हाट वी कैन से, यहाँ से बोल सकते हैं कि R1 इज ऑल्सो इक्वल टू R2। ओके, तो R1 इज इक्वल टू R2 लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग को पता है कि, और इसको मैं R के बराबर लिखूँ अगर,
तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जो हमारा ए था, ए क्या था, R1 प्लस R2 हमने देखा था। तो R1 प्लस R2 को मैं यहाँ पे 2R लिख सकता हूँ, या R को मैं लिख सकता हूँ A/2। अच्छा, जो डेल का फार्मूला था हमारे पास, डेल का फार्मूला था I प्लस E माइनस ऑफ ए। यहाँ I और E इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2I माइनस ऑफ ए। ओके, दिस इज इक्वल टू डेल मिनिमम। अच्छा, अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँ तो क्या लिख सकता हूँ, डेल मिनिमम प्लस ए इज इक्वल टू 2I, देन I इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया जो R है दैट इज इक्वल टू A/2 एंड I जो है दैट वन इज द डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो हमारे पास प्रिज्म था, इस प्रिज्म में अगर रे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा था I से और इधर रिफ्रैक्ट हो रहा था R से, अगर हम लोग इस पॉइंट P पे स्नेल्स लॉ लगाए, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, अगर हम लोग P पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो इन व्हाट वी कैन राइट, अगर हम लोग सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μs लिया जो ऑप्टिकली रेयरर है, और μp हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं यहाँ ज़्यादा, तभी तो ये टिल्ट हो गया है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, μs साइन I इज इक्वल टू μp साइन R। μs साइन I के जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू μp साइन A/2। अगर हम लोग को, अच्छा यहाँ से आपको कभी कभी ये जो एक्सपेरिमेंट मिनिमम डेविएशन वाला आपको क्लास में परफॉर्म करवाया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फाइंड करते हैं। ओके, या आप ऐसा भी बोल सकते हो, इट्स अ रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड द मिनिमम एंगल। ओके, तो वही निकाल लें हम लोग। तो अगर यहाँ से हम लोग लिखते हैं μp अपॉन μs, इधर इसको डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय आर है साइन A/2। ओके, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं μps, दिस आर relative refractive index of P with respect to surrounding, and this is equal to sin del minimum plus A divided by 2 और इधर आया था sin A/2। तो this is the relation we are getting between the relative refractive index of prism and